रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिमिलरली जब हम एमएस डॉस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बूट करते हैं, सो उस टाइम पे एक फाइल क्रिएटेड होती है, दैट फाइल नेम इज कॉल्ड एज command.com. ओके, नाउ द command.com इज व्हाट, इट इज अ फाइल जिसमें कुछ कमांड्स लिखे होते हैं, एंड इस फाइल में जो भी कमांड्स होते हैं उस कमांड्स को हम बोलते हैं इंटरनल कमांड्स. वी विल सी व्हाट इंटरनल कमांड्स आर देयर. And then the next type of commands which we have is an external command. External command क्या होता है, तो ऐसे commands जो command.com के फाइल में अवेलेबल नहीं है. Simply yes, this commands are executable. उसके जो है उसके हेल्प से हम MS DOS में जो है वो हम चेंजेस कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ फोल्डर्स, वी कैन चेक द डिस्क स्पेस, वी कैन प्रिंट आवर फाइल एंड सो ऑन. वी कैन डू फ्यू ऑपरेशंस, but the these commands are not listed in the command.com file. So it is very easy. Internal command means what, ऐसे commands जो command.com file में available है. External commands मतलब ऐसे commands जो command.com file में available नहीं है. Okay, so first in today's session we will be looking at internal commands कि क्या क्या internal commands हमारे पास available है. So the first internal command which we have is a date command. Now date command क्या करता है, so date command will give you the the current date, and if you want you can update the date also. So for that what you have to do is first just go to search for the CMD. CMD is what, it is a command line interface, right? So in this computer, in every system, in every version, we have the MS-DOS का computer, and that MS-DOS is a command prompt only. ये जो command prompt है जिसे हम CMD बोलते हैं, it is a MS-DOS. Okay, so how to start the command prompt? You can directly डबल क्लिक it and start, but जैसे ही हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, so at that time it is not starting as an administrator. But अगर if we want to make a changes, so for that we need to start the command prompt as an administrator. So just right click and click on run as administrator. Okay, तो ये हमें जो है वो पॉपअप देगा, you just click on yes, तो CMD हमारा ओपन हो जाएगा. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? Okay. Now see, once you start the command prompt, हमने पहली कमांड कौन सी देखी थी, डेट की कमांड देखी थी. So मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेट. Now as you can see, the current date is Friday. Today is Friday, January month, 7th is the day, and 2022. अभी suppose if you want to change the date, so you have to write out the date in this manner. Okay, month, day and year के फॉर्म में जो है वो आपको लिखना है. So suppose I am writing 5 month, 7 date and 2022 suppose. Okay, and I'll enter. अभी हमारी current date जो है वो update हो गई to 7th में. Again, if I'm executing the date का command, you can see now it is showing me that Saturday, today, like the current date is Saturday, 5 is the month, 7th is the day, and 2022. एक second. Zinat ma, student is there. Okay, so suppose now I have changed the date. Suppose now I don't want to change the date. सामने वाले college. Okay, so May 7, 2022. Right, yes. Again, if you can see, हाँ right, यहाँ पे भी जो है वो अपडेट हो गया है. So it will update it accordingly. Now suppose you don't want to change the current date, so you can just enter. You can just click enter. तो आपका डेट जो है वो चेंज नहीं होगा. Now I'll just change my date again. हमारा डेट जो था, which is a 1 and 7. Yes. So today is Friday, 1/7/2022. Okay, so ये हमारा डेट अगेन जो है वो आज का डेट हमारा. Then I'll again enter. Similarly, we have a command form time. So अभी if you can see my entire screen, तो यहाँ पे जो है वो टाइम दिखा रहा है 10, 30 and 23 is the seconds. Okay, again if you want you can enter a new time accordingly. Now
Yes, the format of time is hours, minutes, and seconds. Okay, so you can accordingly type like 12, supposed 20 minutes, 30 seconds. And then I click on time, you can get this option. जो मैंने अभी दिया था 12, 20 and 30 seconds. So accordingly you can change. अभी टाइम क्या हुआ है 10, 34, suppose 30 seconds. Okay. So now the time, current time is this. ठीक है. So accordingly we can change the date and time. Now date and time के बाद जो next command हमारे पास है, that is this dir command. Now what is the use of dir command? So dir command stands for, actually the dir stands for directory. ओके, सो dir कमांड क्या करेगा, आप जिस भी लोकेशन पे हो उस लोकेशन का इंटायर डेटा में, लाइक उस लोकेशन में जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स अवेलेबल है वो आपको लिस्ट करके देगा. सो नाउ वी आर इन सी ड्राइव, राइट. सो विल जस्ट सी ड्राइव के विंडोज के फोल्डर में sys32 में क्या क्या फोल्डर्स है या फिर क्या क्या डायरेक्टरीज है वो अगर देखनी है, सो यू जस्ट राइट dir. And as you can see, these are the directories which are available in the C folder. Okay. See, ये सब जो फाइल्स है वो अवेलेबल है. तिथे ताई बघा ना, कम्प्युटरच्या इथे बघा हा हवाय मला. Okay, so these are the number of files which was available in my particular folder, which is C Windows 32. Now it also shows us, like it has given us 4,405 files and 128 directories. Okay, so ये internal entire data जो है वो list out करेगा कि कितना data available है in a particular location. If you want, you can change the location and check. I will also show you कि हम location को कैसे change करते हैं. Okay, but for now directory का command इसलिए use होता है. Now suppose आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी की फाइल्स को चेक करना है, जैसे कि वी आर इन द सी ड्राइव, right, but I want to check the file which is in the E drive. So for that I will write dir a colon, E colon. Now why I'm writing E colon? Because in my system I don't have A drive. Okay, I have C, ABCD is my pen drive and E drive है. So इसलिए मैंने लिखा dir. So जैसे ही मैंने dir एंटर किया, we are getting this option, जिसमें I have a folder like webinar certificate करके है, WAM setup करके है, sample.txt. These are the files which are available in prospectus file 28 and so on. So if I can go to the dir, you can see webinar certificates, WAM setup है, prospector 2020 like 28th May करके एक फाइल है. So these are the files which are available. sample.txt करके फाइल है, राइट. न्यू फोल्डर 2 करके यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है. सी न्यू फोल्डर 2, वेबिनार, दिस इज sample.txt एंड सो ऑन. सो ई ड्राइव की अगर आपको फाइल्स देखनी है फ्रॉम सी ड्राइव, दैट आल्सो वी कैन डू. वी जस्ट नीड टू राइट dir and then directory का name. Okay, then suppose the next command which we have is a md command. Now md command का यूज क्या होता है? So md command यूज होता है to create a directory. Now we are in this C drive, suppose. C drive से what I have to do is I want to change my drive now to E drive. Okay, क्या करना है? C drive से मुझे drive change करना है E drive में, तो मैं सिर्फ लिखूंगी E and colon. So E and colon लिखने के बाद I will be in the E drive. Now you can see previously we was in C Windows System 32. Now जैसे से मैंने E colon लिखा, मैं E drive में आ गई. Now accordingly you can write, if you want to go to the D drive, so you can write D colon. आपको A drive में जाना है A colon लिख सकते हो, B drive में जाना है B colon लिख सकते हो, and so on. ठीक है.
सो हमारे पास ई ड्राइव था तो मैंने ई ड्राइव लिखा। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है? एम आई गोइंग टू फास्ट? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? Yes, am I going too fast? No. Okay, fine. So, did you all understood the commands? हमने अभी तक सिर्फ 3 कमांड्स देखे, राइट? एक हमने कमांड देखा डेट का, डेट चेंज करने के लिए, टाइम कमांड देखा टाइम चेंज करने के लिए, देन हमने कमांड देखा dir विच इज यूज टू लिस्ट आउट ऑल द डायरेक्टरीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? Yes. Okay. Now see, after that, this E colon, okay? It is not opening now with, actually it is just changing your directory. Sorry, it is just changing your drive, okay? Previously you was in the C drive, but अभी आपको क्या करना है, आपको जो है वो C drive में फोल्डर क्रिएट नहीं करना, बल्कि you want to create a folder in E drive. तो अगर हमें देखो, जैसे कि मेरा एंटायर स्क्रीन विजिबल है ना आपको, हाँ, अभी सपोज नॉर्मल कंप्यूटर का आप एग्जांपल लो कि यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर इन ई ड्राइव, तो हम क्या करेंगे, विल ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, हम ई ड्राइव में जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट अ फोल्डर, और यू कैन क्लिक कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट एन एंड सो, राइट? सो अभी अगर मुझे सीएमडी के थ्रू भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या फिर फोल्डर क्रिएट करना है, सो फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू गो इन दैट डायरेक्टरी, राइट? इन दैट ड्राइव आई हैव टू गो। सो मैं ड्राइव में कैसे जाऊंगी? सो बाय यूजिंग दिस ई कोलन। ई कोलन से हम क्या करेंगे, ड्राइव में जाएंगे। नाउ सपोज मुझे सी ड्राइव में जाना है फिर से, सो आई राइट सी कोलन, तो मैं सी ड्राइव में आ गई। फिर से मुझे ई ड्राइव में जाना है, आई राइट ई कोलन। ठीक है, तो ई कोलन का यूज क्या है, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट ई, आपको डी ड्राइव में जाना है तो आप डी कोलन लिखोगे, ए ड्राइव में जाना है तो ए कोलन लिखोगे। नाउ डी ड्राइव में इंटर हुआ बिकॉज इन माई सिस्टम फॉर नाउ डी इज माई पेन ड्राइव, जस्ट सी, डी ड्राइव इज माई पेन ड्राइव, तो उसकी वजह से ये डी में गया। But when I've entered a colon, so it is giving me an output that the system cannot find the drive specified because हमारे पास A drive है ही नहीं, right? So I'll just go to E drive. Yes, we can, Imtiaz. I will show you how. For now, whatever I'm explaining, are you understanding that? Okay. Now once I go inside the E drive में मुझे क्या करना है, मुझे एक फोल्डर को क्रिएट करना है। So to create a folder, we have total 2 commands. Okay, you can use md or you can use mkdir. Okay, now md means what? md and mkdir are the same commands. It stands for make directory. Directory मतलब क्या? Folder. Okay, so if you want to create a directory, so at that time you will be writing md or mkdir. So suppose in A drive I am creating one folder with md fcit. Okay, fcit is a subject, तो मैं create करती हूँ md fcit. Now I haven't entered this command. पहले हम देख लेते हैं fcit का folder है क्या. So do we have any folder with fcit? No, we don't, right? fcit करके कोई भी फोल्डर नहीं है, so मैं यहाँ पे लिखती हूँ md fcit. Okay, and then I'll enter. अभी देखो ये okay आया. If it is not showing anything, which means it is okay, I'll go again to the file explorer, I'll refresh it. Can you see now fcit का फोल्डर जो है वो हमारा क्रिएट हो गया, but it is a blank folder. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. Now we can create a folder using mkdir also. mkdir, suppose I will create demo
और FCIT2 करके करते हैं. ओके, FCIT2 2 and I'll enter. तो अभी for now we don't have FCIT2. I'll just refresh it and then we have FCIT2 करके folder. Okay, so you can use any of the two commands. You can use MD also, you can use mkdir also. Then changing the drive, I have already shown you how to change the drive, right? Abhi dekho, suppose it is the same command, Vignesh. Actually, previously only mkdir command was there in the starting version, but abhi unhone uska shortcut kiya hai to MD. So both the commands are same. There is no difference. It is just a short form of mkdir. That's it. Okay. Now, suppose what I have to do now, FCIT के folder में I want to create chapter 12 का folder. Okay. अभी मैंने क्या बोला, we have to go to the FCIT का folder and then I have to create a chapter 12 का folder. So now at that time what we have to do, first we need to enter into FCIT folder, right, Vignesh? So we need to insert into a FCIT folder, right? And now we are in which folder or in which drive? We are only in E drive. तो अगर मैं ट्राई करूंगी यहाँ पे MD सपोज चैप्टर 12 क्रिएट करने की, ओके, तो वो कहाँ पे क्रिएट होगा? इट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड इन ई ड्राइव एंड नॉट इन FCIT का फोल्डर, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं इसे एंटर करती हूँ सपोज, तो क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे FCIT के फोल्डर में तो ब्लैंक है, बट यहाँ पे हमारा एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा, क्या नाम दिया था हमने? चैप्टर 12, राइट? Yes. So it is going to create a new folder in E drive. Now why in E drive? Because we are inside E drive. अब मुझे क्या करना है? मुझे FCIT के फोल्डर में जाना है. So for that we have a command which is CD. CD stands for change directory. CD लिख के आपको कौन से फोल्डर में जाना है? So मुझे जाना है FCIT के फोल्डर में. So I will write CD FCIT and then I'll enter. तो आप यहाँ पे देख सकते हो E:FCIT. That now I am in which folder? I am in E drive, but in E drive I am in FCIT का folder. Now if I am creating MD chapter 12, okay, so now you can see, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, FCIT के फोल्डर में चैप्टर 12 का फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया. ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ CD? CD का क्लियर हुआ कमांड? ओके, नाउ सी सपोज, ओके, सी we are, don't look at this command, I'll explain you this afterwards. मैं अभी कहाँ पे हूँ? E drive में हूँ. ओके, E drive में if I am executing MD chapter 1 suppose, so ये कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा? E drive में. जैसे कि हम सपोज E drive में आते हैं, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के लिए क्लिक करती हूँ, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिएट होगा. बट अगर मुझे कोई फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो उस फोल्डर में जाना होगा, राइट? सो अगर FCIT में मुझे क्रिएट करना है फोल्डर, सो फर्स्ट आई नीड टू गो इनसाइड FCIT एंड देन आई कैन राइट क्लिक एंड आई कैन क्रिएट अ फोल्डर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमांड्स, मैं बेसिकली बोल रही हूँ, UI के थ्रू बोल रही हूँ. हमें क्या करना होगा? पहले FCIT के फोल्डर में जाके देन राइट क्लिक करके कमांड को क्लिक करना होगा. यस और नो? लाइक राइट क्लिक करना होगा न्यू फोल्डर के लिए. यस, तो इट फर्स्ट यू अंडरस्टूड दिस? यस. अभी देखो, आप मुझे क्या करना है? E से I want to change to I want to enter into FCIT folder. So for entering into some folder or to some directory, we have a command which is a CD. CD stands for change directory. Okay, so हम CD के बाद folder name लिखेंगे. So I'll write CD FCIT. So CD FCIT मतलब क्या? कि मुझे अभी directory को change करना है to FCIT. So when I enter this,
you can see it is in EFCIT, right? Okay, यहां तक क्लियर हुआ? Okay, clear till this point? अभी देखो, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चैप्टर, इन चैप्टर का फोल्डर इन दिस पर्टिकुलर FCIT, तो मैं क्या लिखूंगी? यू कैन ईदर यूज MKDIR और यू कैन यूज MD, MKDIR या फिर MD लिख सकते हैं. सपोज नाउ आई एम यूजिंग MKDIR चैप्टर 1. ओके, एंटर. क्लियर हुआ? अभी देखो FCIT के फोल्डर में चैप्टर का जो है वो फोल्डर क्रिएट हुआ. ओके, अभी मुझे बताओ, अगर मुझे चैप्टर 1 के फोल्डर में और एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूं? वेरी गुड. क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट कमांड क्या आएगा? CD एंड CD के आगे क्या लिखो? FCIT और चैप्टर 1. वेरी गुड. क्या लिखेंगे? चैप्टर 1, राइट? नाउ व्हाई चैप्टर 1? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन FCIT के फोल्डर में हमें चैप्टर 1 में जाना है. सो आई विल राइट CD चैप्टर 1. सो नाउ वी आर इन E ड्राइव, FCIT का फोल्डर, एंड FCIT के फोल्डर में चैप्टर 1 के फोल्डर में हम है. ओके, अगेन आई विल मेक सपोज चैप्टर 12 और 2. ओके, तो अभी देखो चैप्टर 1 का फोल्डर में चैप्टर 2 का फोल्डर क्रिएट हुआ. ठीक है, CD का कमांड समझा सबको? यहां तक एवरीवन इज क्लियर? यस. अभी देखो, नाउ वी आर इन EFCIT चैप्टर 1 का फोल्डर. ओके, नाउ आई वांट टू गो बैक टू FCIT का फोल्डर. ठीक है, मुझे क्या करना है? मैं पहले कहाँ पे थी? मैं पहले थी FCIT के फोल्डर में चैप्टर 1 के पास. अभी मुझे बैक जाना है. जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे फाइल में E ड्राइव में जाते हैं, E ड्राइव में मैं जाती हूँ FCIT चैप्टर 2. ओके, सॉरी चैप्टर 1 में हम थे. अभी मुझे बैक जाना है. सो वी हैव दिस ऑप्शन जहां पे मैं बैक कर सकती हूँ, एंड देन आई गो टू द E ड्राइव अगेन. So if you want to do the same thing again, yes Vignesh, we can do that also, but we have an option which is CD dot dot. Okay, so CD dot dot means what? You are going backwards to a सेम डायरेक्टरी. मतलब मैं CD डॉट डॉट करती हूँ, सो एक जो है वो सिर्फ हमारा बैक होता है. सो नाउ प्रीवियसली वी वाज इन FCIT चैप्टर 1, अभी मैं FCIT में हूँ. अगर मैं फिर से CD डॉट डॉट लिखती हूँ तो मैं E ड्राइव में हूँ. मैं बैक करने का लिए शॉर्टकट. Yes, see these are the command line na, so it's so we need to use the commands only. Okay, so first of all CD dot dot क्या करता है? एक एक जो है स्टेप वाइज आपको बैकवर्ड लेगा. मतलब FCIT के चैप्टर 1 के चैप्टर 2 से है. ओके, सो मैं बैक करूंगी तो चैप्टर 2 में गया, फिर से बैक करूंगी चैप्टर 1 में गया, फिर से बैक करूंगी तो हम E ड्राइव में आते हैं. ओके, so accordingly CD dot dot is used for that purpose. Abhi suppose I'll just go again to the chapter 2 का directory. So see, अब मैं क्या कर सकती हूँ? I don't have to go like this. CD again FCIT लिखती हूँ, then उसके बाद CD करके लिखती हूँ. इतना लिखने की जरूरत नहीं. अब अगर ऑलरेडी आपके पास कोई लोकेशन है तो आप क्या कर सकते हो? उस लोकेशन में जाओ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, यू विल गेट दिस पाथ. ओके, जस्ट कॉपी दैट पाथ एंड हियर राइट CD एंड कॉपी द पाथ. मतलब मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है, बट कहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करनी है? तो FCIT में चैप्टर 1 में मुझे चैप्टर 2 में जाना है. ओके, पहले तो ये दो कमांड्स मैंने लिखे वो समझा सबको? शुड आई रिपीट अगेन? Answer fast.
ओके सी आई रिपीट अगेन, हमने क्या किया देखो, फर्स्ट cd डॉट डॉट क्या हुआ, इट विल जस्ट गो बैकवर्ड्स, एक ही जो है वो एक ही स्टेप से आपका बैक जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये वाला जो हमारा साइन है वही अगर मुझे कमांड में लिखना है सपोज, सो आई विल राइट cd डॉट डॉट, तो वो एक एक जो है वो स्टेप बैकवर्ड जाएगा। अभी अगर मुझे डायरेक्टरी को चेंज करना है, आई एम इन विच डायरेक्टरी, विच ड्राइव नाउ, ई ड्राइव में हूँ, आई एम नॉट इनसाइड एनी डायरेक्टरी, मुझे अगर उसे चेंज करना है, सो आई कैन गो टू वॉट एवर डायरेक्टरी आई वॉन्ट। जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पाथ, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड ये पाथ मिल जाएगा, यू जस्ट कॉपी एंड देन यहाँ पे जाके cd लिख के यू हैव टू पेस्ट द पाथ। नाउ सी वी कैन डू दिस बिकॉज अभी हमारे पास यूजर इंटरफेस अवेलेबल है, बट अगर सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस है तो आपको ये जो पाथ है वो मैन्युअली लिखना होगा, ओके मतलब e:/fcit/chapter1/chapter2 एंड सो, एंड देन व्हेन आई एंटर तो मैं डायरेक्टली ई ड्राइव FCIT चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के फोल्डर में चली जाऊं, ओके यहां तक क्लियर है सबको, ये वाला अभी पार्ट समझा, अभय और कौन था, अबू सुफियान, क्लियर हुआ, ओके। नाउ सी cd डॉट डॉट क्या करता है, सिर्फ एक एक वैल्यू को जो है वो आपके पीछे लेगा, मतलब अगर मैं cd डॉट डॉट लिखती हूँ, सो वी आर इन चैप्टर 2 नाउ, देन विल गो टू चैप्टर 1, राइट। बट सपोज अगर आपको डायरेक्टली यहां से ड्राइव में जंप करना है, ओके instead of going one step backwards, you directly want to jump to the drive, so for that the command is cd backslash, okay you just have to write cd backslash, तो वो डायरेक्टली आपको ड्राइव पे लाके छोड़ देगा, एंड आई एंटर। तो अब हम चैप्टर 1 FCIT में थे, जस्ट आई हैव रिटन cd बैकस्लैश, वो कहा गया ई पे गया, ठीक है यहां तक क्लियर हुआ सबको, okay then we have seen how to make the directory, how to change the directory, okay डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज को कैसे इंसर्ट करना है वो देखा हमने, ओके चेंजिंग द ड्राइव हमने देखा अभी तक, ओके ओके वन मोर एंड अ स्मॉल कमांड। अब सपोज मैंने यहां तक इतना सब जो है वो एग्जीक्यूशन किया, राइट ये हमारे कमांड का ये सब है। अभी सपोज मुझे इसे क्लियर करना है, मुझे इस विंडो को जो है वो क्लियर करना है, सो फॉर दैट वी हैव cls कमांड, ओके cls इज स्टैंड्स फॉर क्लियर, ये क्या करेगा आपका जो भी विंडो है cmd का उसे क्लियर कर देगा। तो अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, ओके सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरा कर्सर है, राइट इफ आई एम एंटरिंग द cls तो वो उसके ऊपर वाला जो भी विंडो है पूरा क्लियर कर देगा, सी नाउ इसके ऊपर और कुछ नहीं है, ओके सो cls का यूज क्या है, cls यूज होता है टू क्लियर द स्क्रीन, इतना क्लियर हुआ सबको। देन we'll see one more small command, so we are left with actually 2-3 minutes, so कौन सी कमांड देखें, dir we are done ना, okay we'll see the copy की command, okay the copy command is very easy, if you want to copy the file, okay one file to another sorry if you want to copy a one file to, you know if you want to create a copy, sorry, so first in a same location if you want to create, so this is the syntax, you just have to write a copy, this is your existing file जिसका आप नेम लिखोगे, एंड देन आपको कॉपी जो फाइल करनी है उसका आपको क्या नेम आना चाहिए, जैसे कि सपोज FCIT में आई विल क्रिएट वन फाइल, सपोज डेमो, okay now demo.txt is my file, but suppose if I'm trying to create a demo file, is it possible for us to create a file with the same name, कर सकते हैं क्या, एक ही लोकेशन पे सेम नेम के दो फाइल्स हो सकते हैं क्या, yes or no, yes no,
राइट, वी कांट क्रिएट अ फाइल विद द सेम नेम। तो अगर मैं इसे यस करती हूँ तो मेरा डेमो2 करके फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट। सो अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे कॉपी करना है, ठीक है, आई फर्स्ट गो टू fcit फोल्डर। मुझे क्या करना है, fcit फोल्डर का डेमो फाइल को कॉपी करना है इन अ सेम लोकेशन। सो आई हैव टू गिव अ डिफरेंट नेम। ओके, सो मैं लिखूंगी कॉपी demo.txt. Now you need to enter the extension. Okay, exactly कौन सी फाइल है उसका extension लिखना is very much important. So we can write demo.txt. demo को चेंज करते हैं new.txt. ओके, मतलब मुझे इस फाइल को कॉपी करना है, डेमो के फाइल को, बट कॉपी करके मुझे नेम क्या देना है, तो नेम देना है new.txt. एंड व्हेन आई एंटर दिस, वन फाइल इज कॉपीड दिखा रहा है। मैं अगर इसमें जाऊंगी तो यू कैन सी न्यू की जो है वो फाइल ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। सो कॉपी का यूज क्या होता है, कॉपी यूज होता है टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ फाइल। फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है तो कॉपी कमांड का यूज होता है इन अ सेम लोकेशन। अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू गिव अ डिफरेंट नेम। बट सपोज आप दूसरे लोकेशन पे क्रिएट कर रहे हो, सपोज मैं ये डेमो की फाइल कॉपी करती हूँ डी ड्राइव में। ओके, सो आई विल राइट कॉपी demo.txt और आगे लिखूंगी d:। नाउ व्हाई आई एम नॉट राइटिंग अ न्यू नेम, बिकॉज मैं दूसरे लोकेशन पे ट्राई कॉपी कर रही हूँ, सो मुझे वही नेम भी रहेगा तो भी चलेगा। आई डोंट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गिव अ न्यू नेम, राइट। सो आई विल राइट कॉपी demo.txt। अब डी ड्राइव कौन सा है हमारा, अच्छा डी ड्राइव अवेलेबल नहीं है, सॉरी, सी ड्राइव लिखते हैं। ओके, सो सी ड्राइव में अभी तक हमारे पास ऐसे डेमो करके कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। आई जस्ट एंटर दिस वैल्यू, वन फाइल इज कॉपीड। हम सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में कहाँ पे था, विंडोज में sys32 ऐसे कुछ तो था ना। सी में अगर मैं चेंज करती हूँ, एक सेकेंड, system32, system32 देखो कहाँ पे है, system32 में we will be having that demo वाला फाइल। अब इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा, डेमो बट क्रिएट हुआ होगा। सी विजिबल है सबको, देखो मैंने सिलेक्ट किया है। सो सी ड्राइव में जो है वो हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। नाउ दिस इज द बाय डिफॉल्ट लोकेशन। ओके, यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द सी ड्राइव आल्सो, कि आपको कहीं दूसरी जगह पे चाहिए तो आप C:, उसके आगे जो भी लोकेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ अ फाइल इन अ डिफरेंट लोकेशन। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? Yes or no? Okay, so that's it for today. In the next session we will continue with the remaining some internal commands. We are left with few more internal commands, जैसे कि remove directory की command है, delete files की command है, files को create करने की command है, and so on. So we will see those commands in the next session. But for today that's it. We will continue in the next session.